Sandhya ma'am, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Hope you're doing well. I'm doing well. Harshita, are you there, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Can you please mute everybody? Yes, ma'am. मैं आप सभी पेरेंट्स को और बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेटा, इतने टाइम से हम लोग वेबिनार्स कर रहे हैं और आप लोग प्रोटोकॉल अभी तक समझे नहीं हैं कि अगर आसपास कोई बातचीत कर रहा है तो पहली बात तो एकांत में बैठें, और नहीं बैठ सकते हैं तो कम से कम अपने आप को म्यूट रखें। इफ यू हैव अ क्वेश्चन, please write it in the chat box. And ma'am will then try and answer your query. Harshita ma'am, you understood? Since they don't understand, please mute everybody. Okay? Yes, ma'am. Yeah. Today, Sandhya ma'am is driving the session. Yes, ma'am. Sandhya ma'am, thank you so much, because I will soon be getting into another session. Yes, right? I'm aware. I don't think any words can express the gratitude, for your support for our children. Very kind of you, ma'am. Always a pleasure talking to you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay. Good afternoon, students. Today we have a session on career planning, and it is with Sandhya ma'am. And before we start a session, I'll just request you again, as the Meenakshi ma'am as well, that please do not speak between the session. If you have any questions regarding the session, if you have any queries regarding whatever is told to you, or you want to ask something about your career, please either write it in chat box or wait till the end. In the end, we'll give you 10 minutes where you can ask about your queries, and your queries will be answered. Now I'll just introduce Sandhya ma'am. Sandhya ma'am is an educator by profession. She has been teaching for 9 years, and from the past 3 years, she has been into the field of career counseling. Thank you, ma'am, for joining us today. Please take over the session. Thank you, Harshita. Good afternoon, students. It's so nice to see all of you. 40-50 बच्चे आए हैं आज, बहुत बढ़िया. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. एंड ये जो आपका करियर प्लानिंग ओरिएंटेशन सेशन जो है, क्लास 10th के बच्चे अटेंड कर रहे हैं. मेनली इस सेशन से आपको क्या बेनिफिट्स रहेंगे ये आपको बाय द एंड ऑफ सेशन पता चलेगा. मेनली क्लास 10th में जो बच्चे हैं वो अवेयर रहें कितने करियर्स हैं आपके चारों ओर, और ये भी अवेयर रहें कि कौन से स्ट्रीम लेने से आपको कौन सा करियर चूज करने का चांस मिले. तो मेनली क्लास 10th इज ऑल अबाउट स्ट्रीम सिलेक्शन एंड बिकमिंग अवेयर ऑफ योर वेरियस ऑप्शंस अराउंड यू. अभी जो ड्यूरिंग द सेशन देयर विल बी सम क्वेश्चंस आई विल कीप आस्किंग यू. यू कैन पुट, बच्चे जो हैं वो चैट में आप अपना मैसेज डाल सकते हैं आंसर्स. ऑलराइट. I will share my screen and start the session. Thank you all for joining, and please hold on for me to share the screen. Yeah. So this is a CPO, that is career planning orientation for class 12th. As you are all aware, DLF Foundation के बारे में आप सब जानते हैं. I am a career counselor. I work for iDream Career. तो पिछले साल भी हमने आपके लिए career counseling की थी, इस साल भी हम आपके लिए career counseling करेंगे. So what are we going to do today? आज आप क्या सीखेंगे? बहुत सारी 7 से 8 फैक्टर्स मेनली जो हैं, जो करियर्स को इम्पैक्ट करती हैं, वो आप सीखेंगे आज. एक स्लाइड है हमने बनाई है आपके लिए. क्या क्या फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके करियर को इम्पैक्ट करते हैं. दूसरा ये है, आप जो इस पूरे साल का जो क्लास 10th का करियर इंटरवेंशन प्लान जो है उसके बारे में आप समझेंगे कि क्या क्या आपको मिलने वाला है क्लास 10th वाया DLF एंड वाया IDs.
नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ अ साइकोमेट्रिक असेसमेंट। बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि इस वर्कशॉप के बाद जो है मैम आपके लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगी, जिसके साथ आप जो यूज करके आप एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट दोगे। उस साइकोमेट्रिक असेसमेंट में जो है 90 मिनट्स का असेसमेंट है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप। और क्या आप सीखोगे कि पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और आपका जो इंटरेस्ट है, हर बच्चा एक दूसरे से आप अलग हो, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो मेरी पर्सनालिटी अलग है, हर्षिता मैम की पर्सनालिटी अलग है, सब अलग अलग है। तो जो आपकी पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड और आपका इंटरेस्ट हो, उस हिसाब से आप अपने करियर्स चूज कर सकते हैं। वो बाय द एंड ऑफ द असेसमेंट जो आप करोगे उससे भी आपको समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज द एनुअल करियर प्लान, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। उसमें 5 चीजें हैं। फर्स्ट, जो पहला जो वर्कशॉप क्लास 10th के लिए हो रहा है, जो आज हो रहा है, उसमें आपको पोर्टल और असेसमेंट ओरिएंटेशन मैं दूंगी आपको। उसके बाद हर्षिता मैम आपसे असेसमेंट करवाएंगे। ओके, पोर्टल जो है उसमें बहुत सारे करियर्स की इंफॉर्मेशन है, कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, एंट्रेंस एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन है और स्कॉलरशिप्स की भी इंफॉर्मेशन है। सेकेंड पॉइंट जो आपको मिलने वाला है फॉर द एंटायर ईयर इज 2 वर्कशॉप्स होंगे। बिकॉज आप लोग क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट चॉइसेस, जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट चॉइस के हिसाब से आपको क्या क्या करियर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, आपको उसके बारे में अवेयर होना है। वो 2 वर्कशॉप्स और इस साल के एंड तक हो जाएंगे। बाय द टाइम यू फिनिश योर क्लास 10th वी विल डू दोज 2 वर्कशॉप्स ऑल्सो। थर्ड इज जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट अभी होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम निकाल के आराम से ध्यान से बैठ के एग्जाम देना है। उस हिसाब से जो आपको रिपोर्ट मिलेगी, रिपोर्ट जो मिलेगी वो एनालाइज करने के लिए 2 1-on-1 सेशंस रखे गए। आप देख सकते हो नंबर 4 पे 2 1-on-1 सेशंस लिखा है। तो उन 1-on-1 सेशंस में क्या होने वाला है, आपका रिपोर्ट पढ़ा जाएगा, आपकी जो काउंसलर होंगी, जो आपको असाइन होंगी आईडीसी से, वो आपको समझाएंगे कि आपके रिपोर्ट के आधार पर आपके जो बेस्ट सूटेड करियर्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपके एम्बिशन या आपके इंटरेस्ट से मैच हो रहे हैं कि नहीं। उस हिसाब से कॉलेज प्लान वर्कआउट भी हो सकता है। इवन इन 10th आप इतने आगे का भी सोच सकते हैं, कॉलेजेस भी कौन से ज्वाइन करने वो भी सोच सकते हैं। ओके, मेनली 10th में जो आपको फिर से मैं रिपीट करूंगी, याद रखना है कि आप करियर्स के बारे में अवेयर हो। और जो डैशबोर्ड एक्सेस है फॉर अ ईयर, नंबर 5 इज डैशबोर्ड एक्सेस फॉर अ ईयर। जो आईडीसी का जो डैशबोर्ड आपको मिलेगा उस पे बहुत सारे 551 करियर्स हैं, कॉलेजेस की डायरेक्टरी है, उसमें एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और स्कॉलरशिप्स की है। तो आई विल शो यू द डैशबोर्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। तो ये रहा आपका एनुअल करियर प्लान। नेक्स्ट, सब इतने सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, पेरेंट्स भी ज्वाइन किए हैं, तो व्हाई इज करियर गाइडेंस नेसेसरी? क्यों हमको चाहिए करियर गाइडेंस? ओके, आप में से बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बचपन में आपको लगा होगा कि काश मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं शायद आज ये बन जाता, या फिर मैंने ये किया होता अपने करियर में। ओके, पर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी, मुझे पता नहीं। दैट इज वन मेन रीजन कि करियर गाइडेंस क्यों चाहिए। सेकेंड, आप देख सकते हो बहुत बच्चे हैं इंडिया में, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 50,000 बच्चों में से खाली एक बच्चे को ही करियर गाइडेंस का अपॉर्चुनिटी जो है मिलता है। सो कंसिडर योरसेल्फ कि आप यू आर लकी कि करियर गाइडेंस आपको टाइम से पहुंच रही है। बाय द टाइम यू आर 14-15 इयर्स ओल्ड और आप क्लास 10th में हो, आपको करियर गाइडेंस मिल रही है। नाउ अनदर रीजन फॉर करियर गाइडेंस व्हाई इट इज नेसेसरी, आप देख सकते हो डेक्कन हेराल्ड करके पेपर है, उसमें एक बार प्रिंट किया था कि 50% स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस में जो ऑलरेडी एडमिट हैं और एमबीबीएस पढ़ रहे हैं, वो जब कोर्स बीच में 50 मतलब 2 साल हो जाते हैं तो वो सोच रहे हैं कि नहीं अभी आई हैव टू ऑप्ट आउट। सो दे वांट टू ऑप्ट आउट मिडवे।
आधे कोर्स के छोड़ के दे वांट। अभी ये क्यों हो रहा है? बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बड़ी मेहनत से एमबीबीएस के कॉलेज में एंटर किया है, लेकिन उसको छोड़ने का दिल है बिकॉज कहीं ना कहीं उसने अपने लिए रॉन्ग डिसीजन लिया है। ओके, अनदर थिंग इज अगेन ऐसा ही एक और केस है वेर इन आईआईटी में हर कोई बच्चा जाना चाहता है, इंजीनियरिंग के लिए। इट इज द बेस्ट कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग, सो एवरीवन वांट्स टू गो टू आईआईटी। अब आईआईटी में क्या है, आईआईटी में भी 2400 स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट इन द ईयर 2019। हर साल ड्रॉप आउट होते हैं। अगेन शायद उनको इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, शायद उनको जर्नलिज्म करना था, उनके इंटरेस्ट और personality is some other place where they wanted to do something else. So next is ओके, सो एमबीबीएस और आईआईटीज के बारे में मैंने बात जरूर की है आपसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिस्करेज कर रही हूँ कि नहीं एमबीबीएस या मेडिसिन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। दे आर द बेस्ट कोर्सेज। ओनली थिंग इज some students are not able to make up they are not able to cope up with the course. Okay, now last point आप देख सकते हो कि just a minute students. Okay, so 1 out of 3 professionals in India are career sleepwalking. तो लिंक्डइन करके एक प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें स्टूडेंट्स जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो हमारी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, वो अपना सारा डिटेल्स रखते हैं लिंक्डइन में। लिंक्डइन ने प्रूव किया है कि 3 में से 1 जो प्रोफेशनल है वो करियर स्लीप वॉकिंग कर रहा है। इन द सेंस वो अपनी नौकरी तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी नौकरी में खुश नहीं। वो रोज उठ के जा रहा है, उसको सैलरी भी मिल रही है, उसी ऑफिस में काम करने वाले बाकी लोग जो हैं वो खुशी खुशी कर रहे हैं, लेकिन वो खुश नहीं। तो इसका ये कारण हो गया कि प्रोबेबली उसको कहीं और उसके इंटरेस्ट थे और उसका एप्टीट्यूड कहीं और था, और उसको कहीं किसी और नौकरी में शायद वो और बेटर कर। नाउ इसीलिए करियर गाइडेंस इज नेसेसरी सो दैट आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो और ये दिक्कत आप लोगों को फेस ना करना पड़े इन फ्यूचर। सो क्लास 10th, आप लोग क्लास 10th में हो, तो यू आर एट द एब्सोल्यूट राइट टाइम फॉर कमिंग टू द फर्स्ट कंक्लूजन कि मुझे आगे जाके 11th 12th में स्ट्रीम क्या लेनी है, उसके बाद मैं कौन सा कोर्स चूज करूंगा एंड कौन से प्रोफेशन में मैं इवेंचुअली 2 प्लान बना सकते हैं। एक प्लान ए कि मेरा ये फर्स्ट करियर ऑप्शन होना चाहिए, और प्लान बी कि मेरा सेकंड करियर ऑप्शन होना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ करियर गाइडेंस? इसके फायदे क्या क्या हैं? कुछ चीजें मैंने पिछले जस्ट 2 मिनट पहले भी आपको समझाई कि टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, करियर गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट। नाउ आपने सही डिसीजन लिया तो क्या होगा? हायर चांसेस टू बी सक्सेसफुल इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ दोनों को मैच करके, बैलेंस करके आप सक्सेसफुल रहेंगे इफ यू आर इन द राइट करियर। ओके, नेक्स्ट इज दैट बेटर फोकस एंड इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स एजुकेशन। नाउ किसी ने मुझसे कहा कि आप कॉमर्स ले लो क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, बट एक्चुअल में शायद मेरा फिट कुछ और ही सब्जेक्ट था, तो मैंने गलती से ले लिया वो एक सब्जेक्ट, पर मेरे को अच्छा नहीं लगता है अभी पढ़ने में, ना ही 11th 12th में, ना ही ग्रेजुएशन। ओके, तो करेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम सिलेक्शन आपने की, करेक्ट ग्रेजुएशन के लिए इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो या कॉमर्स हो, आपने अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करके अपना बेस्ट सब्जेक्ट चूज किया है, तो फोकस और इन्वॉल्वमेंट करियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बेटर रहेगा, आप उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग एरियाज बियॉन्ड एकेडमिक्स टू एक्सेल इन लाइफ। अब
ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, आर्टिस्टिक हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छा म्यूजिक में हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं। सो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, पढ़ाई के अलावा ऐसे कौन सा एरियाज हैं, वो आइडेंटिफाई करके उसको भी एक प्रोफेशन बनाया जा सकता है। ओके, बेटर परफॉर्मेंस ऑन द डिजायर्ड करियर पाथ में, इन द सेंस आपने आपका बेस्ट फिट करियर चूज किया है तो आप उसमें परफॉर्म बेटर करोगे, इन द सेंस खुशी खुशी काम पे भी जाओगे और सबसे बेस्ट परफॉर्मर इन द ऑफिस विल बी यू इफ यू आर इन द राइट करियर। Now, last most important point is best career may give you very good salary, may not give you very good salary, but will you be self satisfied? खुद की satisfaction होनी चाहिए, खुद का life में अपना खुद का respect होना चाहिए. So these things are the benefits of having career guidance at the right time. Okay, 5 steps to the process of career guidance. Now, in the chat box, I want you to answer some, if you can just put a few messages. What are the different career options you have? In the sense, can you name few careers? Can somebody put in the chat box? Class 10th careers, professions. Okay, kuch, can you put some chat में आप डाल सकते हो some names? Doctor हो गया, engineering हो गया. Okay, these two are the most common. Doctor सब लिख रहे हैं. Any other career? Cricketer, business management, very good. Architect, very nice. Army, entrepreneur, IAS, very good, very good. Artist, so I have got some 15, 20, 25. Excellent students, good. Now you are all aware of many careers, but let me tell you something. I'm sure 551 careers are there on the IDC dashboard, there are many which you will be reading for the first time. Okay, so first step for all of you, पहला step आपका क्या है? क्लास 10th में जो है आपको अवेयर होना है कि इतने सारे करियर ऑप्शंस और भी हैं मेरे लिए. Engineering or doctor is a very good career option, but there are so many others also in which you might be good. So becoming aware, पहले आपको awareness बढ़ानी है different types of careers. First thing is to go to IDC dashboard, 551 careers आपको वहीं पे मिल जाएंगे पढ़ने के. Next is identifying your own strength and weakness. ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है. अभी ये एकेडमिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है और पर्सनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी हो सकता है. नाउ एकेडमिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि आप क्या इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपका वो स्ट्रेंथ हो गया है. आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया है आपके लिए. और अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं तो दैट इज अ स्ट्रेंथ इन योर कैरेक्टर. ओके, और अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं वो भी आपका एक तरीके से मानो स्ट्रेंथ ही है. अब वीकनेस हो गया कि आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ, वो मेरा एक वीकनेस है. मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो एक वीकनेस हो गया. और मैं मैथ्स में मैं बहुत वीक हूँ तो वो एकेडमिक वीकनेस हो गया. तो सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग आपका जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है. ओके, यहाँ पे आई जस्ट वांट टू टेक 1 minute टू टेल यू दैट आई होप आप लोग सबने एक पेपर और पेन आपने लिखा होगा, लेके रखा होगा आपने, ताकि ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आप नोट कीजिए. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो 2 कॉलम आप बना सकते हैं, एक में स्ट्रेंथ है और आप एक वीकनेस लिख लीजिए. तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, थर्ड पॉइंट जो है, आपका जो सूटेबल करियर होगा वो बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है. स्मॉल एग्जांपल इज कि मैथ्स में अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं आप, और आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत पसंद. ठीक है, सो यू कैन ऑलवेज बिकम एन इकोनॉमिस्ट इन फ्यूचर. एक्चुरियल साइंस ले सकते हो. अब जो एक्चुरियल साइंस है, आप में से बहुत बच्चों ने सुना होगा, बहुतों ने नहीं सुना होगा. ये भी आप
एक बार ढूंढोगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ताकि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को लेके एक करियर चूज कर सकें। Fourth is creating a plan to succeed in the career you choose. Now 10th standard में ही आप स्टार्ट करेंगे, स्ट्रीम आपने सेलेक्ट कर लिया है, 11th 12th में आप कॉलेजेस आइडेंटिफाई करेंगे, 12th में you will start applying to those colleges. Fourth is you have to implement the plan. अभी the last is implementing the plan. अब सब कुछ हमने बोल दिया है, counselors have told you take this stream, आप ये वाला स्ट्रीम चूज करो, आप ये कॉलेजेस के लिए अप्लाई करो, और बट टाइम से आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आपने भूलना नहीं है कि इस कॉलेज का डेडलाइन कब है, ये कोर्स में जाने के मुझे ये फायदे। तो सम थिंग्स यू हैव टू डू ऑन योर ओन ऑल्सो। एक तो सेल्फ स्टडी, बिकमिंग अवेयर ऑफ करियर्स यू विल डू, आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ्स you will do. The counselors will help you choose a stream. They will tell you कि ये इन सब colleges में apply करो, but eventually the implementation of the plan is all yours. Okay? तो ये हो गया implementation. Now, this is a very important topic. Now, scope of careers बहुत बच्चे पूछते हैं कि कौन से career का scope ज्यादा रहेगा। एक चीज याद रखिए कि in the world there are so many problems. ओके, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, हंगर है, पोल्यूशन है, वेस्ट है, सेफ्टी है, इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं। तो बहुत बच्चे जो हैं उनको लगता है कि दुनिया में देयर शुड नॉट बी हंगर, नहीं होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा थोड़ा और बेटर हो, मेरे शहर में बहुत वेस्ट है, उसको कैसे ठीक करें। तो इन सब चीजों को सॉल्व करने के लिए व्हाट कैन यू डू? ओके, अभी हंगर हो गया है एक प्रॉब्लम, उसमें शेफ हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, पब्लिक पॉलिसी, फूड एंड टेक न्यूट्रिशनिस्ट हो गए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इतने सारे करियर्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते। सिमिलरली इन द प्रॉब्लम टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट है, एनवायरमेंटल लॉ है, पब्लिक पॉलिसी, all these people help in solving the problem of waste. हंगर के प्रॉब्लम में if you have heard there are midday meal schemes in schools, दिल्ली में भी schools में हो रही हैं, आंध्रा में भी स्टेट है जो वहां पर भी हो रहा है। एक फाउंडेशन है अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो बहुत सारे बच्चों को मिड डे मील्स प्रोवाइड करता है, एंड वहां there are a lot of people working in that foundation. So to solve the problem of hunger you can also be a chef एंड फूड एंड टेक न्यूट्रिशनिस्ट के न्यूट्रिशियस फूड कैसे बनाना है, कैसे सर्व करना है, कितने टाइम में देना है, ये सारी चीजें आप सोच सकते। नाउ इफ यू आर पैशनेट अबाउट वेस्ट, अगेन यू कैन बिकम एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, मेक लॉज की प्लास्टिक सा बैंड, इस स्टेट में बैन है, रिसाइकिल करना है प्लास्टिक वेस्ट। तो अगेन नेक्स्ट इज पोल्यूशन। नाउ इन पोल्यूशन यू सी that there are so many cars nowadays, they are very less polluting in the air. So automobile engineering you can do, so that you are passionate, if you are passionate that you want to make a car which is very least polluting, जो बहुत कम pollution करे, environmental engineering कर सकते हो, laws and public policy. Now जैसे दिल्ली स्टेट में जो है बहुत pollution था, बीच में आपने देखा 1-2 साल पहले, हर साल शायद दिल्ली में भी वो लॉ आता है कि पोल्यूशन का कंट्रोल करने के लिए एक दिन ओनली ऑड डेज एंड इवन डेज पे नंबर वाले कार ही चलेंगे। सो दीज आर ऑल पब्लिक पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स जो वो पर्टिकुलर लॉ को एनफोर्स करते हैं। सो डू यू ऑल्सो वांट टू solve that, go into public policy or become a lawyer and solve the problem of pollution. Next is safety. ये भी अनदर एक प्रॉब्लम है जिसमें people like child safety is a problem, safety for women आजकल सब लोग बात कर रहे हैं, senior citizens जहाँ पे वहां पे crimes हो रहा है। तो psychologists what do? They analyze why these crimes are happening. Education is, if children were educated, कि education उनको बहुत पहले ही उनको समझाया है कि
ऐसे these crimes are not to be done. अच्छी एजुकेशन मिली है तो शायद कोई क्रिमिनल ही नहीं रहता शायद दुनिया में. ओके, जर्नलिज्म इज अनदर करियर. जहां पे क्राइम्स हो रहे हैं वहां पे एक पुलिस भी चाहिए होती है, वहां पे जर्नलिस्ट भी चाहिए होते हैं, ताकि द क्राइम इज रिपोर्टेड प्रॉपरली एट द राइट टाइम. बहुत क्राइम्स हैं जो अनरिपोर्टेड हो जाती है. तो ये 4 प्रॉब्लम्स तो मैंने लिखे. तो डू यू, आप एज अ क्लास 10th स्टूडेंट, डू यू फील दैट ऐसे भी और भी कोई प्रॉब्लम है इन द वर्ल्ड विच आई नीड टू सॉल्व? You can maybe put it in the chat box कि ऐसा कुछ है which you feel very very passionate about and you need to solve. Can you put 1 or 2 answers in the chat box for me, children? ग्लोबल वार्मिंग, लक्ष्या, वेरी गुड. ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन का एक इफेक्ट ये है पीपल्स हेल्थ. ओके, यू वांट टू वर्क फॉर पीपल्स हेल्थ, गुड हेल्थ ऑफ पीपल, एक्सीलेंट. पोल्यूशन का एक डायरेक्ट इफेक्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. जो जहां पे ज्यादा पोल्यूशन है वहां इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. वेरी गुड आंसर, थैंक यू ऑल सो मच. नाउ इस चीज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जहां पर भी आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करोगे, वहां उस चीज का स्कोप हमेशा रहेगा. जॉब्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट वेयर यू आर हेल्पिंग समवन इन नीड and where you're trying to solve somebody's problem. Okay, so in चीजों में scope of work always continues to remain and will always be there. जब तक the world exists, you will have these issues to be solved. Next, slide number 1, no poverty. Then second is zero hunger. I'm sure all of you class 10 students are getting, have you ever seen this picture before? It's 17 और आएंगे इसमें points. कोई बता सकता है कि क्या है ये? I want to know because शायद आपने सोशल स्टडीज में कहीं ना कहीं पे आपके टीचर ने या स्कूल में कहीं क्या है ये SDG Sustainable Development. Very good, Anant, Anshuman. Okay, anyone else who has given these sustainable development, children? Can you type in the message? No. Okay, all right. So sustainable development it is. Okay, so United Nations nation ने 17 global goals दिए हैं for the entire world to follow. तो सारी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है. फर्स्ट उन्होंने बोला है कि नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए दुनिया में इन फ्यूचर. जीरो हंगर, भुखमरी नहीं होनी चाहिए. गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग होना है सबका. क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में हो या कंट्री. जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए. सो बॉय और गर्ल के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंसेस. अभी भी इन सर्टेन प्लेसेस सैलरीज, सेम जॉब के लिए सैलरीज अलग अलग. तो ये सब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है यूनाइटेड नेशन ने बोला. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो पीने का पानी अच्छा रहे और जो हमारे वेस्ट जो पानी जा रहा है उसको ट्रीट करके क्लीन पानी ही बाहर आना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट से. अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. Now we already have पेट्रोल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी तो है, बट क्लीन एनर्जी का एग्जांपल क्या है? कोई बता सकता है? क्लीन एनर्जी इसमें पोल्यूशन ना हो. कैन एनीवन टाइप क्लीन एनर्जी? ओके, विंड एनर्जी. वेरी गुड. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी. ओके, जो भी एनर्जी हो ज्यादा हम यूज करें जिसमें जो पोल्यूट ना करे अर्थ.
नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो सबको काम भी मिले और countries should have economic growth. They should, people in the country should have a decent work life balance also. Okay, next is industry, innovation and infrastructure. Now ये सारी चीजें जो पहले 7-8 goals तो हैं ही, but also countries should develop their industry, ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो तो जॉब्स मिलेगा, इनोवेशन होना चाहिए, नई चीजें बननी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर, नए बिल्डिंग्स, ये सब ऑल्सो शुड कम अप इन अ सस्टेनेबल वे विदाउट डैमेजिंग द सराउंडिंग्स मच. रेड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, तो गरीब और अमीर में ज्यादा डिफरेंस ना हो. पॉइंट नंबर 11, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. नाउ इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यूएस वगैरह में देयर आर सम सिटीज जो पानी वो यूज कर रहे हैं घरों में, वो ही रिसाइकिल होके दोबारा यूज होता है, तो सस्टेनेबल है, वहां वेस्ट नहीं जा रहा है पानी. ओके, सो दे हैव मेड सस्टेनेबल सिटीज. इलेक्ट्रिसिटी कुछ शहरों में उनके प्योरली सोलर एनर्जी बेस्ड है. तो the global goal should be that India maybe people should work towards these sustainable cities and community. Next is responsible consumption and production. Consumption मतलब consumers है, हम सब जो चीज सामान खरीदते हैं मार्केट से, we are consumers. काफी सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफी सारी चीजें खरीद ली, वेस्ट कर दिया, फेंक दिया. That is a waste of national resource, है ना. तो why should we should not try and avoid, क्योंकि जो वो एक एक चीज जो बनने में जो एनर्जी यूज हुआ है वो सारा वेस्ट जाएगा. तो कंज्यूम रेस्पॉन्सिबली, उतना ही खरीदें जो आप यूज करें. एंड रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, ऐसा नहीं है कि सम फैक्ट्री हैज बीन सेट अप, इट हैज मेड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे बैग्स ऑफ राइस उन्होंने पैक कर लिया है, बट कहीं रखा है, दे हैव नॉट सेंट इट, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है ठीक से, तो वो वेस्ट हो गया है. तो अगेन रेस्पॉन्सिबल कंज्यूम भी करना है और रेस्पॉन्सिबल प्रोड्यूस भी करना है हमने. ओके, क्लाइमेट एक्शन. नाउ दिस इज very very important. This is a very delicate topic because जहां जहां पे इंडस्ट्रीज आते हैं वहां पे पोल्यूशन होती है. तो ये सारा चीज कैसे सब लोग मिलके प्लान करें और अर्थ का जो सिस्टम है वो ज्यादा इम्बैलेंस ना हो, क्लाइमेट एक्शन करना है. इसीलिए थिंग्स लाइक क्लीन एनर्जी एंड sustainable cities etc. Okay, now life below water, अर्थ के ऊपर जो हो रहा है वो हम सब ने देखा है कि कैसा है क्या है, but we forget at times that there is life below water, जहाँ पे fishes हैं, microbes हैं, बहुत सारे other organisms grow under water. Unfortunately जो समंदर है उसमें भी बहुत कचरा भर रहा है. Okay, so are you passionate about कि यहाँ पे सी के नीचे there should not be any garbage, वहाँ गंदगी ना हो. Okay, so these are all points, please remember these. 15 is again life on land. So खूब सारे trees लगाने हैं फ्यूचर में ताकि other animals also coexist with human beings. Okay, peace, justice and strong institutions, like we all have courts हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, जस्टिस सबको मिलनी चाहिए इक्वली, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए. नाउ 17th इज पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल गोल. सो यूनाइटेड नेशंस हैज सेड दैट ये सारे जो ऑल द कंट्रीज अक्रॉस कैन कम टुगेदर, सब एक साथ मिलके ऐसे रूल्स बनाएं, ऐसे पॉलिसीज बनाएं ताकि these 17 points are taken into consideration in future. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे करियर क्लास में ग्लोबल गोल्स के बारे में क्यों हम बात कर रहे हैं. ये सिमिलर है, पिछले स्लाइड से भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं, इसलिए बात कर रहे हैं कि इन फ्यूचर जो भी इंडस्ट्री सेटअप होने वाला है, जो भी करियर आने वाला है इन फ्यूचर, इज ऑलवेज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड दीज ग्लोबल गोल्स. लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम में भी बहुत सारे करियर्स आएंगे. सिमिलरली ग्लोबल गोल्स आल्सो आर एन इंडिकेशन दैट these things are going to come up
in the near future. Now 10 years from now, जब आपका एक by the time you're 25, you will have an opportunity to work for these particular causes. Okay, so the future careers revolve around global goals. I hope you understood that section. Next is 7 factors in choosing a career. Here skills हो गए. Now these are certain things, कुछ चीजें हैं जो हम सीखते हैं. अभी communication skill हो गया, interpersonal skill हो गया, problem solving skill हो गई है हमारी, time management कुछ skills हैं. Communication skills अच्छे हैं तो शायद मैं journalism कर सकता हूँ या फिर जर्नलिस्ट बनने की सोच सकता हूँ, राइटर बन सकता हूँ. ये है कुछ स्किल्स जो हैं वो हम अपने पेरेंट्स से भी ट्रेडिशनली हैंडेड डाउन स्किल्स भी होते हैं. जैसे पॉटरी हो गया. एक बच्चे से मैंने आई मेट वन चाइल्ड जिसके पेरेंट हैंडलूम सिल्क वीवर्स थे. ओके, तो आंध्रा में जो सिल्क साड़ी का जो कल्चर है बहुत पॉपुलर है, तो उसने अपने पेरेंट्स से वो स्किल सीखा. एंड बड़ा होके वो अभी न्यू जनरेशन का बच्चा है, तो उसने अपना ही वीविंग प्लांट उसने सेटअप किया, खुद भी ही वीव्स और दूसरों को रख के अपना बिजनेस भी चला रहे. तो स्किल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, ये आप सीखते हैं, आपको सिखाया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड ऐसी चीजें हैं जो यू आर बॉर्न विद. नाउ कुछ बच्चे होते हैं एक क्लास में जो है एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं. सम चिल्ड्रन अंडरस्टैंड आर वेरी गुड, अभी मैथ्स में बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, बहुत सेम टीचर पढ़ा रहा है, बट कुछ बच्चे हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि बाय बर्थ दे हैव दैट स्किल ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी. एप्टीट्यूड में बहुत सारे टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड हो सकते हैं. मेनली 5 की बात करेंगे. मैकेनिकल है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, वर्बल एप्टीट्यूड है, स्पेशल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड. दीज आर द डिफरेंट एप्टीट्यूड्स. नाउ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट कैन बी कि आर यू कुछ सम चिल्ड्रन आर वेरी वेरी आर्टिस्टिक इन नेचर, तो उनको म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग, डांस, ड्रामा ये सब पसंद है, तो वो एक इंटरेस्ट हो. कुछ बच्चे क्या है, सोशल इंटरेस्ट होते हैं, दे लाइक टू वर्क इन ग्रुप्स, वो टीम लीडर्स बनना चाहते हैं, वो एक अलग इंटरेस्ट. सम चिल्ड्रन आर एंटरप्राइजिंग, वो उनको लगता है कि पर्सुएडर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे बच्चों को, दूसरे पियर्स को, so they can become group leaders. So that is interest. Now values and motivation. What is it that motivates you in choosing a career? Sometimes it can be money. So are you interested in making lot of money? वो एक motivation हो सकता है. कुछ बच्चे motivated हो जाते हैं कि I want to do something for my country. I want to serve the nation. I want to join the defense forces. वो एक motivation हो गया. वैल्यू सिस्टम ऐसा होता है कि सम चिल्ड्रन आर देयर, दे से कि आई एम नॉट वरीड कि मुझे कितनी सैलरी मिले, लेकिन मुझे आई वांट अ नाइस वर्क लाइफ बैलेंस. मैं 24 आवर्स में काम नहीं कर सकता, मुझे 5-6 आवर्स काम करने हैं. आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय पीपल इन द हाउस. तो सम ऑफ आवर वैल्यूज आल्सो इज अ फैक्टर इन चूजिंग द करियर. नेक्स्ट इज पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में क्या आप इजी गोइंग रिलैक्स्ड हो, कि आप बहुत फोकस्ड हो, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कि आप बहुत पेशेंटली काम कर सकते हो, बहुत लोगों को कि आपकी नेचर बहुत हेल्पिंग है, आप हेल्प करना चाहते हो, आप दूसरों को पढ़ाना चाहते हो. तो पर्सनैलिटी ऑल्सो इज अ फैक्टर विच इफेक्ट्स इन चूजिंग करियर. अनदर इज कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्क्स. नाउ supposing my parent is working in DLF. DLF is mainly into construction. Construction में civil engineers हो सकते हैं. आपको अगर बात करनी हो तो आप उनमें से किसी से बात कर सकते हैं. Network is again parents, आपके friends, आपके relatives. So if you supposing have a lawyer in your family, okay, my uncle is a lawyer, he will help me to become a lawyer, he can help you. So your contacts and network around you also help you to choose your career. Next is location. Recently आपने देखा कि location is where exactly are you in India. अभी आप coastal area में हो, hilly area में हो, all these things depend also affect your career decision. अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक शिप लॉन्च हुई थी जिसके लिए पीएम भी, प्राइम मिनिस्टर जी भी गए थे.
है ना। तो वो कहाँ पे बिल्ड हुई थी, कोचिन में हुई थी, केरला में। तो कोस्टल एरिया में जो है शिप बिल्डिंग का कल्चर है, तो फैक्ट्रीज आर देयर, शिप बिल्डिंग यूनिट्स आर देयर। ऑल्सो गुजरात में अलंग में देयर इज अ प्लेस जो शिप ब्रेकिंग यूनिट है। और कोस्ट में जो है लॉट ऑफ जॉब्स रिवॉल्व अराउंड फिशरीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ फिश होता है। ओके, बैंगलोर जैसे शहर में अब जाओ तो ये चीजें नहीं होंगी। वहां पे मेनली चिल्ड्रन आर इनटू आईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉर्पोरेट रोल हो गया, सो दिस काइंड ऑफ, सो लोकेशन ऑफ द स्टूडेंट आल्सो अफेक्ट्स द career choice you are making. Okay, now children, this is the important part. What you are going to be assessed, जो आपका जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिए और एक नोटबुक में आप लिख भी लेना ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 सेक्शन होंगे असेसमेंट में, ठीक है। एक होगा आपका एप्टीट्यूड सेक्शन, ये जो पहला आपको दिख रहा है। इस एप्टीट्यूड सेक्शन में 5 सेक्शंस होंगे, हर एक चीज पे टाइमर होगा, तो 10 मिनट्स यू विल गेट फॉर ईच सेक्शन। Only in the aptitude section will you have the timer. Okay, so verbal में English questions होंगे, numerical में maths के थोड़े questions होंगे, mechanical में machines के बारे में pictures related होगा, उसमें reasoning, logical reasoning, spatial मतलब उसमें again drawings होगा कि 3D आपके figures, उसके हिसाब से question। तो aptitude section is the only section जिसपे आपका टाइमर लगेगा, वो 50 मिनट्स का होगा। बाकी जो पर्सनालिटी और इंटरेस्ट सेक्शन है उसमें टाइमर नहीं है, 20-20 मिनट का सेक्शन है, यू कैन टेक योर टाइम टू आंसर। इसमें राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है पर्सनालिटी और इंटरेस्ट में, इसमें आपको अग्री, डिसएग्री, यस नो वाले आंसर्स होंगे। राइट और रॉन्ग आंसर्स हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में। ओके, नाउ व्हेन यू आर गिविंग द असेसमेंट, टेक अ पेपर एंड पेन। पेपर और पेन आप अपने साथ में रखिए और आराम से अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आता है वो आपके करियर डिसीजन, जो टॉप 10 करियर क्लस्टर्स जो आपके आते हैं उसको अफेक्ट करेगा। इसीलिए जेन्युइनली आप आंसर कीजिएगा, डोंट यूज एनी अदर फॉर्म ऑफ डोंट आस्क एनीबडी फॉर द आंसर्स, ऑनेस्टली आंसर। उसमें पूछा जाएगा डू यू लाइक टू हेल्प अदर्स, तो ऑनेस्ट आंसर करना है, यस या नो या समटाइम्स मे बी, वो वाला आंसर। ओके, अगेन इंटरेस्ट सेक्शन, दिस जो रिजल्ट जो आएगा आपको 1-on-1 में, वी विल एक्सप्लेन व्हाट द रिजल्ट ऑफ योर असेसमेंट इज। नेक्स्ट इज करियर चॉइस बेस्ड ऑन एबिलिटीज। सो एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी जो 3 चीजें हैं, these are the main things which assess your career choices. Now ability या aptitude, okay, now I have the aptitude in maths, maths में अच्छा हूँ, तो what are the career choices? If you all have a paper and pen, you can just note down also. Now maths में I can do statistics, I can do computers, engineering, finance, banking, accounts. Next, I have good ability in language, so education, journalism, mass communication, hospitality industry, travel and tourism. And next is I have good capacity in machines. So machines I like. So I can do mechanical engineering. Okay, I can also join the merchant navy. I can do flying. I can, if I like planes, I can also become an aeronautical engineer. Okay. Now, I have good ability in science. So science based subjects, agriculture हो गया, food sciences हो गया, medicine हो गया, PCB biology students के लिए, medicine के अलावा paramedical भी है। All right. I have good reasoning, decision making मेरी अच्छी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं law भी कर सकता हूँ, marketing, self employment, business management, गवर्नमेंट एंड डिफेंस एक्सेट्रा। एबिलिटी इन डिजाइनिंग, कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं, नोटबुक में भी बना लेते हैं और कभी कभी स्क्रीन पे भी बना लेते हैं। आजकल सारा डिजाइनिंग जो भी है आजकल कंप्यूटर्स पे ही हो रहा है, सो दे कैन गो फॉर
डिजाइनिंग, अब डिजाइनिंग में भी बहुत सारे ऑप्शन, फुटवेयर डिजाइनर से लेके प्रोडक्ट डिजाइनर, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, देयर इज वेब डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, ड्रेस डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, different types are there. Okay, all this you will get to read on the dashboard. I have good ability in acting. मेरी aptitude acting में है, तो I can choose performing arts, dancing, or I can make serials, or I can go into films or acting. Okay. Now I have good ability in sports. Now sports में I can either do training. I can either become a sports person, or I can become a sports coach, or I can, become a sports educator, teach sports to students, or I can join defense. Now, I have good ability for places, pictures and drawings, etc. I like to travel. So, blogs banate hain aajkal, travel blogs. Okay, people who like to travel, they make their traveling videos. They get into the transport industry. They also can get into become pilots of transport planes, which are only transporting, उसमें लोग नहीं होंगे, they are only transporting cargo. नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नेवी में रहते बहुत सारी जगह हैं, you have to visit शिप में रह के आपको बहुत सारे प्लेसेस में भी जाने को मिलता है. So these are the options with depending on your ability. Again, on personality. Now personality में I am hardworking and I can keep practicing, well. So what can I do? I can get into finance, sales, marketing. Again, I am a fan of imagination and experiment. So either I can write a story, make a movie, become a writer. Experiments मुझे पसंद है. I can go in to become a scientist. I keep calm. मैं शांत रहता हूँ और कम बोलता हूँ. तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं रिसर्च में जा सकता हूँ. पेंटर, आर्टिस्ट, अकाउंटेंट, बैंकर. तो बैंकिंग जॉब्स में आपने किसी से बात नहीं करनी है ज्यादा देर. ओके, सो आई कैन बिकम अ राइटर ऑल्सो. नेक्स्ट इज आई लाइक टू स्पीक अ लॉट एंड इंटरेक्ट विथ पीपल. जैसे मैं अभी आप सबसे बात कर रही हूँ, मुझे बात करना अच्छा लग रहा है, और तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? I can become a teacher. Education, I can become a professor. Sales and marketing roles मैं कर सकती हूँ. Politics में मैं join कर सकती हूँ. आप अगर आपको अच्छा लगता है, आप HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर. जो MBA में HR मैनेजमेंट करते हैं, वो इंटरेक्टिंग विद पीपल, ऑफिसेस में लोगों को रिक्रूट करना, उनको इंटरव्यू करना, उनको हायर करना, फायर करना, ये रोल्स होते हैं. ओके, नाउ I am tough and competitive. So first thing, जो tough and competitive बच्चा है, वो he can think of army, defense हो गया, पुलिस हो गया, security personnel हो गया, coast guard हो गया, border security force भी हो गया, डॉक्टर भी बन सकता है, वो एजुकेशन में भी जा सकता है. So these are all different fields based on your personality. I am strong at heart and I love to compete with others. So मुझे competition में मैं दूसरों को, मुझे ना वो स्पिरिट है कि आगे बढ़ना है और हराना है. सो देयर इज सेल्स एंड मार्केटिंग इज द बेस्ट फील्ड फॉर. ओके, बिजनेस. सो बिजनेस में यू हैव टू बी very very motivated and you have to keep competing with others to do well in business. मैं simple hearted, supportive of others हूँ. ओके, मुझे ये सब compete नहीं करना है दूसरों से. I want to help others, क्योंकि मेरा नेचर वैसा है, मेरी पर्सनैलिटी वैसी है. तो आप क्या कर सकते हो? टीचर बन सकते हो, जैसा मैं कर रही हूँ, काउंसलर बन सकते हो, सोशल वर्क, थेरेपिस्ट. पर्सनैलिटी ड्रिवन चॉइसेस, करियर चॉइस. Why we should think about all this is because at the end of the day you have to be happy in the right choice आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से. Now interest. Now what are the careers you will be successful in depending on your interest. Okay, aptitude हमने देख लिया, that is abilities जो हैं उसके हिसाब से देख लिया, पर्सनैलिटी के हिसाब से देख लिया. अभी आप इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए. I want to do something myself, so I can become an engineer. खुद मैं कुछ करना चाहता हूँ. I can become a soldier, forest guard. I like to research and innovate. ये मेरा इंटरेस्ट है.
सो इकोनॉमिस्ट क्या है, रिसर्च कर सकते हैं वो, तो दे आर थिंकिंग कि कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी हमारी इकोनॉमी के लिए। Singing, music, acting, designing and writing. These are another few interests. Again, from the word itself, you know, if your interests are these, then you can again become a designer, writer, singer, musician, and or an actor. You like to help others. Again, interest is also helping others. So again, counselor, social worker, teacher, nurse. Okay. You're interested in becoming a team leader हो आप, entrepreneur हो आप, enterprising हो। अभी से कुछ बच्चे होते हैं ग्रुप में, जब आप देखोगे कि 10th स्टैंडर्ड में भी है, ग्रुप में है, तो एक लीडर जरूर होगा उसमें, तो उस वही सब पूरे टीम को चलाएगा, वही बोलेगा कि ऐसे ऐसे करना है, एंड ऑफन ही इज वेरी सक्सेसफुल। ओके, so they can go ahead and become CEOs of business firms, corporates, you know, become manager, take on lead roles in sales and marketing, etc. Now some like to follow traditional jobs. Okay, some people don't want any very जो बहुत ज्यादा entertainment नहीं चाहिए, मुझे अपना basic conventional job करना है, मुझे सुबह जाना है 9 बजे, शाम को 5 बजे I want to wind up, so I want to join the bank. Okay, बैंक employee हो गया, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सो ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स वाले जो मैन ओल्ड एज ट्रेडिशनल जॉब्स जो हैं, आई वांट टू फॉलो दैट ओनली। ओके, दिस इज एन एक्टिविटी which I want you all to take out a notebook and pen. I hope you all have a notebook. Okay, yes, notebook है सबके हाथ में? Can I see yes in the chat box please? Krishna, Piyush, do you have a notebook wherein you can do this homework? Yes, okay, great. Yes. Okay, thank you students. So this is the last part of our workshop. I hope till now you have understood what I have tried to explain. This is the yeah, so here you can see I want you all to think of your favorite movie. Okay, जो आपकी फेवरेट मूवी रही होगी, और उसमें जो कैरेक्टर होगा जिसने एक बहुत ही मतलब यू नो, आई वांट यू टू थिंक ऑफ अ मूवी इन विच द कैरेक्टर हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल एज अ मे बी एज अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ क्रिकेटर और अ डांसर, विच एवर इज योर फेवरेट मूवी, उस फेवरेट कैरेक्टर को लेके, उसमें जो भी आपका फेवरेट कैरेक्टर था, उसका जो इंटरेस्ट था लाइफ में, उसके बारे में लिखेंगे। कैन यू सी 3 सर्कल्स हियर? यू विल आल्सो मेक 3 सर्कल्स। एक में आप इंटरेस्ट लिखोगे, पर्सनालिटी और एप्टीट्यूड। नाउ इंटरेस्ट that may have helped him to choose the particular career in any movie. Can somebody put in the chat box which movie he is thinking of, और उसका जो कैरेक्टर होगा वो कौन सा कैरेक्टर है? फेवरेट मूवी एंड द करियर विच इज चोजन बाय द लीड रोल। ओके, फेवरेट मूवी का कोई कैरेक्टर, जो लीड रोल जो प्ले किया है, उसका जो कैरेक्टर है, उसने जो करियर चूज किया है, उस करियर के हिसाब से उसकी क्या क्या इंटरेस्ट थे और पर्सनालिटी थी, और उसका क्या एबिलिटी था कि उसने ऐसा चूज किया है। एनीबडी वन आंसर इन द चैट बॉक्स? एनी फेवरेट कैरेक्टर? ओके, करियर भी लिखना है उसका, व्हाट वाज हिज करियर? Okay, I will quickly as anyone. Okay, so you all can take time. This is a homework. Write down the favorite movie of yours, the chosen career which you have, which the host has taken, which the lead role has chosen. Have you all seen the movie Swadesh? आपने देखी होगी। स्वदेश में शाहरुख खान was a NASA scientist थे वो,
ठीक है, तो उनकी क्या थी, उनके इंटरेस्ट क्या थे, उनके इंटरेस्ट थे कि टू मेक न्यू थिंग्स, स्पेस साइंस उनका इंटरेस्ट था ही। उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, शांत थे, बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने नई एक चीज क्रिएट की थी, एक विलेज में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, उन्होंने क्या किया, इनोवेट किया, अपने तरीके से पानी यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाया। ओके, तो ये उन सब के उनकी पर्सनैलिटी थी, उनकी एबिलिटी, व्हाट वाज हिज एबिलिटी, ही हेल्प्ड, क्या था उनका, ही वाज गुड, मे बी एज अ चाइल्ड ही वाज वेरी गुड इन मैथ्स एंड साइंसेस, ही वाज हार्ड वर्किंग, तो थे ही, है ना, वो आपने मूवी में देखा होगा। सो आई वांट यू टू डू दिस एज अ होमवर्क। ओके, वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू। आंसर्स में आप सेम आंसर नहीं लिखोगे, आप अपना फेवरेट मूवी का लिखोगे। Now I will just show you open the dashboard for you children. Just a second, I will just share the yeah. So beta, using the idc.com जो मैम हर्षिता मैम आपको प्रोवाइड करेंगी, जो लिंक प्रोवाइड करेंगी, आप उसको यूज करके लॉगिन आईडी मोस्ट प्रोबेबली विल बी योर फोन नंबर यूज करके वो मैम विल टेल you will log in, the password she will tell you, and then you will start your assessment. This is the dashboard which is there for you for a year. इसी dashboard में आप यहाँ देख सकते हो assessments and reports. तो यहाँ पे आप assessment start कर सकते हो अपना. Okay, before you come to this assessment page, वो आपसे पूछेगा choose your language. You can choose English, you can choose Hindi, whichever language you want to. आप टेस्ट जिस लैंग्वेज में लेना चाहते हो आप उसको क्लिक कर सकते हो. उसके बाद आपसे प्रोफाइल फिल करवाएगा, नेम, स्टेट एक्सेप्ट सिटी पूछेगा. उसके बाद आप इस पेज पे आओगे. इस पेज पे आपका असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स आप देख सकते हो. यहाँ पे एक कॉलम है करियर असेसमेंट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना. आई विल जस्ट टेक आउट 1 second चिल्ड्रन सो दैट आई कैन जस्ट या. तो हियर करियर असेसमेंट फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका असेसमेंट स्टार्ट होगा. जो 90 मिनट वाला जो आपका असेसमेंट है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट. ओके, अगेन रिमेंबर टेक टाइम, मतलब वो जो 1.5 hour है, आराम से आप बैठेंगे, पीसफुली टेस्ट लेंगे और ऑनेस्टली टेस्ट देना है, नहीं तो रिपोर्ट आपका इधर उधर गलत हो सकता है, फिर गलत गाइडेंस नहीं चाहिए ना हमने. तो फॉर द करेक्ट गाइडेंस यू विल टेक द assessment properly. Okay, now after this section is over, can you see on top over here, you can see info center button, beta, all of you can see the info center. This is what you will click. Okay, info center button mein you will have these explore careers, college directory, exam and scholarships. You are all in class 10th. आपको जो मैंने first बताया था आपको, यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ द करियर्स एंड 550 करियर्स कहाँ पे है मैं दिखाती हूँ आपको. एक्सप्लोर करियर्स में आप क्लिक करोगे तो ये हो गया प्रोफेशनल करियर्स. प्रोफेशनल करियर्स उस हिसाब से जिसमें आप अपना बीएससी, बीटेक, एमबीबीएस, वो सारे डिग्रीज जो डिग्री कोर्सेज आप करोगे वो इसके नीचे आएंगे. वोकेशनल करियर्स हैं जो आप डिप्लोमा कोर्सेज या वोकेशनल बी वॉक कोर्सेज, बैचलर ऑफ वोकेशन करोगे वो इसके अंडर आएगा. नाउ प्रोफेशनल करियर्स में ऐसे 21 क्लस्टर्स हैं. 21 क्लस्टर्स के हर एक क्लस्टर के अंडर यू विल सी 5-6 ऑप्शंस, 10 ऑलमोस्ट, कुछ कुछ में तो 10 ऑप्शंस भी हैं. लाइक इफ यू ओपन साइंस एंड मैथ्स यू विल सी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें. ओके, नाउ इसमें वी कैन ओपन वन पर्टिकुलर टॉपिक. आई विल शो यू हाउ टू रीड अबाउट all these careers. Now mathematician आपने क्लिक किया इसमें आपका आएगा sneak peek of what a mathematician does. I hope you all can see. नीचे आप देख रहे हो what it is all about, specialization tracks, how you can enter the career, okay, how you can pathways. When you come down children, you will also get to see future prospects as a mathematician. You will see these 5 colored boxes.
अभी मैथमेटिशियन बनने के लिए फर्स्ट इज BSc मैथ्स करना है, तो वो कहाँ करना है? इफ यू क्लिक ऑन दीज कॉलेजेस इट विल ओपन अप फॉर यू राइट नाउ बिकॉज यू आर इन क्लास 10th. अभी से कॉलेज सर्च यू कैन डू मे बी बाय द एंड ऑफ 10th स्टैंडर्ड, जब तक आपका डैशबोर्ड 1 साल तक रहेगा तब तक यू कैन डू. बट इनिशियली what I want you to do is I want you to go through, explore careers, different types. This is the important page for class 10. Agriculture and food science के नीचे you can see there are so many options. Architecture and planning के नीचे there are so many options. Art and design के नीचे so many options. जैसे मैंने आपको बताया फुटवेयर डिजाइनर, तो ये भी आप खोल के हर एक ऑप्शन को, इसके करियर के बारे में आप पढ़िए. इसमें एग्जैक्टली लिखा होगा कि एज अ फुटवेयर डिजाइनर व्हाट विल यू डू, व्हाट विल योर वर्किंग आवर्स भी, वेयर विल यू वर्क, हाउ विल यू वर्क. यू कैन सी रीड फुल करियर आर्टिकल ऑन द राइट. सपोजिंग आपको इंटरेस्ट लगे कि अच्छा ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप ये रीड फुल करियर आर्टिकल प्रेस कर सकते हो. वो आपको पूरा कंप्लीटली फुटवेयर डिजाइन के कंप्लीट ऑप्शंस दिखाएगा. कैन यू सी ऑन द लेफ्ट? वर्क एक्टिविटीज, स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है इसमें, करियर अर्निंग्स भी है, ग्रोथ भी है. सो द डैशबोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चिल्ड्रन. प्लीज गो थ्रू द डैशबोर्ड after you take the assessment and read up the information about the different careers, all 551 careers. Okay, now with this I will just like to, yeah, so please remember info center button on your dashboard. Okay, this was the info center button and explore careers. I will now go back to my so the dashboard orientation, I hope you all have understood dashboard कैसे यूज करना है. एक बार फिर से जब आपके one-on-ones होंगे, एक बार फिर से आपको डैशबोर्ड में कोई डाउट रहेगा तो we will answer that for you as well. Okay, all right students, can you put any questions you have for me? आपको कोई डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में प्लीज डाल सकते हैं. Yes, very good, Bhumika. Rancho, yes, the movie 3 Idiots में जो है engineering. Okay, he was very hardworking and interactive. Very good answer. Yes, Harshita. I hope you all are keeping a paper and pen and noting down your doubts. In case इस session में you have not thought of your doubts, you can go through after your assessment. You can use your dashboard. डैशबोर्ड के बाद जो है, देखने के बाद फिर से आपको डाउट्स हैं तो one-on-one सेशन में आप पूछ सकते हैं. Any questions for me please? You can please type in the chat box. बच्चे yes. So I have already explained assessment कैसे करना है. Ma'am will give you, I have explained that once. Ma'am will give you the login ID, that is the dishaidc.com link. Once she gives you the link, she will give you a login ID. Most probably वो सभी बच्चों का phone number ही होता है. Okay. Now once you have the phone number use करके the password is 123456 सभी बच्चों का, आप उसको करके assessment आप start करोगे. So जैसे मैंने आपको explain किया, 90 minutes वाला होगा. 50 minutes aptitude section जिसमें timer होगा, 5 section होंगे, उसमें timer है. पर्सनालिटी सेक्शन 20 मिनट्स का है, उसमें टाइमर नहीं है. और अगेन इंटरेस्ट सेक्शन जो है 20 मिनट्स का है बिना टाइम. ओके, एनीवन हैज एनी डाउट्स इन हाउ टू डू द असेसमेंट? यू कैन प्लीज पुट ऑन द चैट बॉक्स. Harshita ma'am, are you there? Can you take over then? Hello.
Yes, Students, Harshita ma'am. अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, मैम से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एंड इन केस अगर आपको अभी नहीं पूछना, तो आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप मुझे क्वेरी डाल सकते हैं, आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे एक टेक्स्ट डाल दीजिए कि आपको क्या क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेरी है। उसके अलावा आपके साथ आईडी और पासवर्ड आपके असेसमेंट के लिए आज रात तक सबके पास आ जाएंगे, ठीक है? असेसमेंट देना शुरू कर देना है, और कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। Thank you so much, ma'am, for giving your time. Thank you, ma'am. Thank you, children, for being here. Thank you so much. Thank you, everyone.